Today is a proud moment for all of us because today is session number 40, 40, and we are clapping for all of you that who all of you have made this possible by coming on every Friday for this Friday Fiesta. And we together, we are growing in this journey. It's so cool, isn't it? We are feeling so happy about it. So thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. And I am so feeling fulfilled. So you all know, for the people who are new to this, and they all know that क्या है Friday Fiesta. So डबल मजा है और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम, फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना। फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। आज 40th सेशन पे आगे हमारे 39 फ्री सेशंस हो चुके हैं जो YouTube पे सबके लिए अवेलेबल है। You can just subscribe my channel Come On with Shreya, and you can just get all the recordings on different variety of topics. We have talked about manifestation, we have talked about money, we have talked about past, we have talked about beliefs, affirmation, positive thinking, energy, everything. We have talked about it, and we will be still talking about it. So welcome all of you for this 40th session. What is the topic? Stuck in the past can get us burned. But before that, let us sing a song. Sing a song, which one? That मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। और जनरली हम भगवान अंकल के साथ फर्स्ट 15 मिनट्स लाफ्टर क्लब करते हैं और वहां पर बहुत सारा हंसते हैं। वी गो इनटू जॉय वाइब्रेशंस, अबंडेंस वाइब्रेशंस, एंड हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। आज भगवान अंकल बिजी है, आज भगवान अंकल नहीं आ सकेंगे, लेकिन हम हमारी मस्ती चालू रखेंगे। डेफिनेटली द टॉपिक इज वेरी सीरियस अबाउट इट। द टॉपिक इज क्वाइट सीरियस। So let's begin with the topic. But many a times in many of these topics, I'm going to push your buttons, and you are going to get triggered, and you may like some things, and you may not like things, and you will say that all this is bullshit, and I don't believe it. But that is also okay. That is your reality. That is your truth as of now, and we are all changing. So it's perfectly okay. So for all this kind of thing, because see, we are here working on energy, we are working on our vibrations and on our frequencies. So there will be many things which will not be in your alignment, what I'm sharing, what I'm talking, but that's also perfectly okay. But the only thing we will keep telling to ourselves that I'm ready to change, I'm ready to change, I'm ready to grow, I'm ready to change, I'm ready to grow. So are you all ready to sing with me? Yeah? Yes, yes. Say, Yes. yes. Thank you, Varsha. Thank you for sharing that big shout out. Yes, thank you so much. So let's sing. Change, change, I'm ready to change. 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 Change, change, it's easy to change. Change, change, it's easy to change. Change, change, I'm eager to change. आप लोग सबको मेरे पीछे गाना है. It is very easy song, but the more you are going to sing with me and loudly and happily, the universe is also listening that this person is ready for the change, and let us give this person more and more opportunity for change. So please keep repeating and singing with me and after me. So change, change, I'm eager to change. Change, change, I'm eager to change. Change, change, I'm open to change. Change, change, I'm open to change. Change, change, I feel safe. Change, 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 Change. I feel safe to change. I feel safe Change, to change. The yeah, change, I feel change. safe.
change, I feel safe to change. I feel safe to change. Change, change. I'm change, happy as I change. Change, change. I'm change, happy as I change. change, Change, change. I'm happy as I change. Change, change. I love to change. Change, change. I love to change. Change, change, change. Ha ha ha. Change, change, change. Ho ho ho. Change, change, change. Hey hey hey. Change, change, change. Ho ho ho. Change, change, change. He he he. Change, change, change. Change, change, it's easy to change. Change, change, it's fun to change. I'm changing every moment. It's easy to change. I'm changing every moment. It's easy to change. I'm changing every moment. It's fun to change. I'm changing every moment. It's fun to change. I'm changing every moment. It's easy to change. I'm changing every moment. It is safe to change. I'm changing every moment. It's safe to change. I'm changing every moment. I'm growing as I change. I'm changing every moment. I'm growing as I change. Change, change. I love to change. Change, change. I love to change. Change, change, change. Ha ha ha. Change, change, change. Hey, hey, hey. Change, change, change. Ho, ho, ho. Change, change, change. He, he, he. Change, change, change. Ho, ho, ho. Change, change, change. Ho, ho, ho. Change, change. It's easy to change. It's fun to change. I love to change. It's safe to change. I'm eager to change. मैं मेरी मस्ती में और मैं ये बदलना चाहती हूँ बार बार। अगर आप समझो कि बार बार अगर आप दिन में ये गाना रिपीट कर रहे हो अपने ही से, बहुत आसान गाना है, और अगर ये गाना आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे बदलना है और मुझे मेरा प्रोग्रामिंग बदलना है, मेरा पास्ट प्रोग्रामिंग बदलना है, मुझे मेरे पास्ट को भुलाना है और वहां से बाहर निकलना है और मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है. सो इट इज वेरी वेरी इजी and very very important to repeat this and telling this universe that I am ready to change and I am open to change and I am ready to receive all the opportunities. जब आप ये बार बार गाना गाते हो तो यूनिवर्स को भी पता चलता है और यूनिवर्स भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देती है चेंज के लिए, बदलाव के लिए यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देती है. So I thank you all of you that we are all in this journey of change. But before that, can I just request all of you that switch on your video? Isn't it fair on my part that I need to see you? Or do I need to see the black screens? And this black screen wants to listen, and this my computer wants to listen. Please, when I am, how will you feel if I will my video off and I'm continuously talking? Would you be able to connect? No, right? Even you want me to see, you want to see my expression. How am I doing? What am I doing? How am I sharing? If it's only the voice, then no. So let's please switch on your videos. आप कहीं पे भी हो चलेगा, कोई भी ड्रेस में हो चलेगा, किचन में हो चलेगा, डाइनिंग टेबल पे हो चलेगा, बेडरूम में हो चलेगा, but please 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 switch on your videos so that I can connect with you. And now I know that okay, these are the faces I know because नाम तो मैं पढ़ती नहीं हूँ यहाँ पे, my focus is on the camera. बट जब मैं चेहरे देखती हूँ तो मुझे पता है अच्छा ये चेहरा, डिम्पल का चेहरा मैं बार बार अभी एवरी फ्राइडे को देखती हूँ, हाँ मुझे पता है, हाँ और ये सीमा का भी चेहरा मैं देखती हूँ, मुझे पता है. सो जब चेहरा देखती हूँ तो मुझे आसानी से पता चलता है ना, आई एम एबल टू कनेक्ट मोर एंड मोर विथ यू. सो थैंक यू वेरी मच for sharing it, and thank you Magical Suman. Yes, we are going to create magic in our life, and thank you Lucky Lucky Kaushal. So thank you. आप अपना काम जारी रखिए. I can completely understand you females have many roles to play and I am with you, so I respect you, but still you are choosing this program. That's my pleasure. So continue. दक्षा पटेल जोर जोर से काट रही है, काटते जाओ. और हेमा भाटिया कुछ तो कर रही है किचन में, करते रहो आप. और आप सब लोग अपने काम के साथ बिजी रहते हुए भी, बट जब मैं मेडिटेशन करूं आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज टेक अ पॉज एंड सिट इन द मेडिटेशन.
When I'm talking, it's fine. You are doing your work, but when we are doing meditation, please sit, take a pause and sit for a while. So we are going to begin with a meditation, small meditation. So please take a seat and we will begin with the meditation. So let us close our eyes, take a pause, and taking a deep breath, breathing in deeply and breathe out. Okay, so let's begin. Taking a small pause and taking a deep breath, breathing in deeply and breathe out. Breathing in deeply and breathe out. लंबी गहरी सांस हम लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपने भीतर जाएंगे. And just observe your tummy going in and out. आपकी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा. अगर चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल देंगे. And just relax and come in this moment. Come in this moment. Thank you, my divine. Thank you for gifting all of us this amazing opportunity to go within. Thank you, my divine, for blessing all of us with this awareness where we are constantly choosing self-growth, self-development. हम सब अपने ऊपर काम करना चाहते हैं. हम हमारे अपने आप को बदलना चाहते हैं. अब तक बहुत सारे मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग लिए, डिजायर्स के पीछे भाग लिए. अभी इस सृष्टि के लॉज को सीखते हुए, फॉलो करते हुए हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे. तो उसके लिए हम तहे दिल से प्रार्थना करेंगे उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को. हे परम पिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसीह, पूरे दिल से हम आपके शरण में आए हैं. हम सब बच्चे आपके शरण में आए हैं.
हमारा हाथ थाम लो। दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा हाथ थाम लो। बार बार हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कभी खुशियों में नाच रहे हैं और बार बार दुखी बनते रोते रहते हैं और सुख और दुख के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुछ अच्छा हुआ, बहुत खुश हुए, और कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ, दुखी ही दुखी हो गए हैं, दुखी ही दुखी हो गए हैं हम। कब निकलेंगे इस चक्रव्यूह से बाहर? कब मिलेगी हमें मन की शांति? और सच पूछो तो हम क्या अनुभव करना चाहते हैं जिंदगी में? इतनी सारी डिग्रीज ले लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, मन चाही जॉब मिल गई, मन चाहा घर बंगलो गाड़ी मिल गया, मन चाहा पति या मन चाही पत्नी मिल गई, बच्चे आ गए, और देखा जाए तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या अनुभव करना चाह रहे हैं? क्या सोचा है कभी हमने? बस ये हो गया तो मैं खुश होंगी, ये हो गया तो मैं खुश होंगी। बस सिर्फ हम खुशियों के पीछे भाग रहे। वी आर चेजिंग हैप्पीनेस। कैन वी टेक अ पॉज and ask ourselves that really what is it that I choose to experience? क्या सचमुच बाहर की चीजें मुझे खुशी देगी? कब तक मैं बाहर भटकती रहूंगी मेरी खुशियों के लिए? कब तक मैं बाहर वालों के ऊपर निर्भर रहूंगी मेरे खुशियों के लिए? पति ने या पत्नी ने कुछ अच्छा भला कह दिया, बहुत अच्छा लगा, खुश हो गई। पति या पत्नी ने कुछ ऐसे बातें कर दी जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, हम दुखी हो गए। बॉस ने बहुत तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। बॉस ने हमें थोड़ी सी डांट दे दी, थोड़ी सी धमकी दे दी, हम दुखी हो गए। कहाँ है सच्ची में हमारी खुशियां? कब तक रिमोट कंट्रोल की तरह बाहर वाले हमें हमारी खुशियों पे काबू करते रहेंगे, नियंत्रण करते रहेंगे, और हम दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनेंगे, पपेट बनेंगे? कब तक? क्यों नहीं हम स्वनिर्भर हो जाएं कि बाहर वाला कोई भी हमारी खुशियां छीन नहीं सकता, बाहर वाला कोई भी हमारे मन की शांति छीन नहीं सकता। बाहर कुछ भी होने दो, भीतर से हमारा मन शांत है, निर्मल है।
and we are experiencing complete peace and harmony in within. क्यों नहीं ऐसा हो सकता? ऐसा कहां पर हम रास्ता खो बैठ रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि मन की शांति हम बार बार खो बैठते हैं? थोड़ी सी मनचाही बात हुई नहीं कि मन की शांति खो दिए। क्यों? पूछिए अपने आप से, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप इमोशनली इतना जल्दी ट्रिगर हो रहे हो? पूछिए अपने आप से। क्यों बाहर वाले आप पपेट बन रहे हो? क्या आप बदलना चाहते हो? क्या आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो? या आप हमेशा हमेशा के लिए मन की शांति का अनुभव करना चाहते हो? Then you are on the right platform. And let us discover that what is it that is taking away my peace? Slowly and steadily, let us come back to this moment. And welcome back to this moment. क्या लगता है आप? Let it be an interactive session. क्या लगता है आपको? क्यों हम इतनी आसानी से हमारी मन की शांति खो बैठते हैं? क्योंकि हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर में ऐसा क्या है कि जो मन की शांति को खो बैठे हैं? मतलब जो हमारे साथ घटा है उसको हम अपने माइंड में रखते हैं और जो नहीं हुआ है वो उसको सोच के हम अपने प्रेजेंट को खराब करते रहते हैं। ओके। जो नहीं हुआ है उसको इमेजिन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और हम अपने आप को डराते हैं एंड वी गो बैक इनटू दोज वाइब्रेशंस ऑफ एंजाइटी और हम अपने आप को डरा के हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है और हमारी मन की शांति खो बैठते हैं। वो फ्यूचर में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं। तब एट द सेम टाइम हम जब पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बार बार पास्ट में जाना भी चाह रहे हैं और पास्ट में चले जाते हैं? कौन हमें पास्ट में लेके जाता है और कौन हमें पास्ट में लेके जा रहा है एंड क्यों हम बार बार जाते हैं? हम खुद। जस्ट अ मिनट या हाँ, कौन जवाब दे रहा है? You have to mute yourself, Rashmi. Rashmi, please mute yourself. Thank you. या मंजीत, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम वो पुरानी चीजों को याद कर करके मतलब बार बार उनके बारे में सोच के जो कि पास्ट हो चुका है फिर भी हम उसको अपने माइंड में रख के
सोचते रहते हैं। Okay, right. So, just a minute. तो हम बार बार, जैसे इन्होंने कहा कि हम पास्ट में ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो बार बार जो नहीं हुआ है वहां पर हम जाके उसी के बारे में सोचते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं. ओके, what do you think? What that is? This is what Manjit is talking about. What about others' experience? What is making you that? And I request, there are 2 iPhones. I request that please rename yourself so that I can connect with you. There is one lady, I think, sitting in the plane. I don't know. There is some lady who is with iPhone, name iPhone, and there is one more person iPhone. Please change your name, rename yourself. Okay. Who else wants to share that? What is it that, जैसे इन्होंने कहा, बहुत ही सही है कि हम बार बार पास्ट में जाते हैं और फ्यूचर में जाते हैं और अपने आप को हम दुखी करते रहते हैं. एकदम सही बता रहे हैं मंजीत जी. बट हम क्यों जाते हैं पास्ट में? माइंड का नेचर है वो या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है. माइंड का नेचर है. सॉरी, मैं सुन ही नहीं पाई. क्या बोला आपने? सॉरी रश्मि. यस मैम. या जस्ट अ मिनट. सो उन्होंने कहा कि मन का एक स्वभाव है जिसकी जो पास्ट में चला जाता है. ओके, व्हाट एल्स? हम सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और ऐसा कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हम सुखी और दुखी होते हैं. जब कोई हमारे हिसाब से काम करता है तो हम खुश हो गए, जब किसी ने हमारे मन के हिसाब से काम नहीं किया तो हम दुखी हो गए. या सो हम, थैंक यू वेरी मच रश्मि. तो हम सारी दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं. जब अपने हिसाब से लोग चलते हैं तो हम खुश हैं कि वाह, मेरी बीवी, मेरा पति कितना अच्छा है और मेरी सारी चीजें पूरी हो रही है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. मेरा बेटा, मेरा बेटी कितनी अच्छी है और सारी चीजें मेरे हिसाब से हो रही है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. बट एट द सेम टाइम जब मेरे हिसाब से चीजें ना हुई तो मैं दुखी हो गई, क्योंकि हम सारी दुनिया, हमारी जो दुनिया है, जो हमारे स्पेशली लव्ड वंस हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं कि वो सब सारे लोग हम जो चाहे उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जिए और हम सब साथ में वैसे ही जिए. तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस रश्मि. व्हाट एल्स? Hello. लोगों के हमको दुखी करते हैं. या रश्मि जी, थैंक यू. या अरुणाचलम जी. Yeah. Present is nothing but a resultant of past. That is why. Sorry, I couldn't hear you. Can you repeat? Present is nothing but a result of past. Okay, great. Yeah. That is why we go back to the past and worry why we had not been this way or that way, and that is why the present is not that way. Okay, right. Yeah. So thank you very much for sharing your viewpoint. And उनका कहना है कि present is nothing but the memories of past, और बार बार हम वहां पर चले जाते हैं and then उसके बाद हम हमारे present को भी बिगाड़ देते हैं, जो बहुत सही बात है. But present is also a gift, and if we are mindful and if we are aware of the present moment, we can really enjoy and be in present moment. So there is nothing wrong in present, but हमारा जो mind है वो इतना चंचल है कि वो बार बार भाग जाता है. मंकी माइंड है जो बार बार भाग जाता है पास्ट में या बार बार भाग जाता है फ्यूचर में. लेकिन मैं आपको वो कहना चाहती हूँ कि पास्ट, क्या सबका इतना बुरा बैंड बजी है सबकी? कोई अच्छी मेमोरीज ही नहीं होती आपके पास? क्या अच्छी कोई भी सेलिब्रेशन वाली, खुशियों वाली, आनंद की घड़ियां नहीं देखी आपने? और क्या आपने सिर्फ वही देखा बैंड बजाने वाला ही कि आप दुखी हो जाओ? क्या सबका पास इतना गमगीन और सैड है? क्यों ऐसा हाँ, हो?
हाँ, जो वो पेट फाट है वो हमारा खुद का ही किया हुआ है, अभी हमें रियलाइज होता है, इसलिए हाँ। वो ज्यादा हावी हो जाता है हमारे। ओके, सो जो जो सैड पार्ट है वो हमारा किया कराया हुआ है। सो हमारी हम भूल है, भूल हमारे से हमारी भूल है कि हमने उस समय नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और हाँ, से हमें दुख हुआ और जो भी है, ओके, सो और ये जो इतना सैड हुए। वाओ, थैंक यू। जो हमने बहुत सारे मिस्टेक्स की हुई है पास्ट में, जहां पर हमें लग रहा है कि हमने बहुत गलतियां की है, और हम अभी वो याद करते हैं और हमें दुख होता है कि अरे यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट हो रहा है और गिल्टी फीलिंग्स आ रही है, राइट। अभी आपको वो गिल्टी फीलिंग और रिग्रेट आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है कि आपने मिस्टेक्स किया है, लेकिन कई केस में तो वो भी नहीं होता। कई केस में तो वही लगता है कि वो सारे लोग गलत और मैं सही। तो कई केस में तो वो सारा गुस्सा ही पड़ा रहता है। तो मेरा क्वेश्चन वो है कि जब हमारे पास, तो देखो आपकी जो भी उम्र होगी, 20, 25, 50, 60, 70, ये सारे जो हमारे जो भी हमारी उम्र है, ये उम्र में कितनी सारी हैप्पी मेमोरीज हुई होगी, बट क्यों हमारे लिए यही बार बार आता है और हम क्यों पास्ट को लेके दुखी? जब पास्ट को याद करना दुख के साथ कनेक्शन क्यों है? पास्ट को याद करते हो सैडनेस के साथ कनेक्शन क्यों है? मैं बोलूं मैम? बोलो बोलो। नेगेटिव पावर जो है, नेगेटिव फोर्स है, दैट इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव। या या इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो ज्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर जी और वो जी ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जी नेगेटिव पावर इज वेरी मच पावरफुल देन द पॉजिटिव पावर, जी। positive incidents and events and emotions. Yeah, thank you very much for sharing that. Anybody else wants to add anything to this? Yeah, Veena, you want to share something? You are holding a mic in your hand. आई वाज थिंकिंग कि बिकॉज शायद वो हमारा बिलीफ सिस्टम वैसे बन गया है, एंड एक पॉजिटिव तरीके से या कोई नए पर्सपेक्टिव के साथ उस चीज को हम देखे, वो हमें नहीं पता है। Okay, yeah, okay, that's beautiful. That हमारा बिलीफ सिस्टम से हमारा वो पर्सपेक्टिव ही वो बन गया है, और एक ही पर्सपेक्टिव से, एक ही चश्मा पहन के मैं वो पास्ट को देख रही हूँ, और दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं वो पास्ट को देख ही नहीं पा रही हूँ और देखने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। तो मे बी इसीलिए वो जो उस समय पे जो भी मुझे हुआ, अनुभव हुआ, वो अभी तक मेरे दिमाग में तरोताजा है और मैं उसी चश्मे से इस चीज को देख रही हूँ। थैंक यू वीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। या व्हाट एल्स? शोभा, you have unmuted yourself. I'm Yeah, very I think happy. I'm enjoying this conversation. Yeah. we don't want to come out of our past. ये Mhm. इंटेंशनली हम कोशिश नहीं करते हैं। Wow. शायद हमारी आत्मा सफर करना चाहती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, वाह वाह। तो हमारी आत्मा सफर करना चाहती है और हम इंटेंशनली वो पास्ट से डिटैच नहीं हो रहे हैं और पास्ट को भूलना नहीं चाह रहे हैं। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव दैट हम पास्ट को भूलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पास्ट को पकड़ के बैठे हैं और बार बार वो सफरिंग वाले मोड में चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बेचारा बेचारी बनना चाहते हैं, मैं बेचारा मैं बेचारा। बार बेचारा और बेचारी बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, कितनी कितनी सहानुभूति मिलती है हमें, कितना कंपैशनल वोट मिलता है, कितना प्यार मिलता है हमें कि अरे यार ये बेचारा और ये बेचारी, उसके साथ तो देखो कितना बुरा हो गया, कितने पहाड़ टूट पड़े हैं। तो वो सोच के हमें अंदर से एक सुकून मिलता है, हाश कोई तो मुझे सुन रहा है, कोई तो मुझे देख रहा है। एंड देन दैट्स व्हाई वी आर होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, कि वो सुनते हैं, वो मेरी कहानी को याद करके मैं बेचारा बेचारी फील करती हूँ और प्यार मुझे मिलता है। थैंक यू वेरी मच, सो ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स? Maybe they want to escape from the reality, ma'am. Present reality. Okay, wow, this is also true, that we want to escape from present reality and that's why we go into the past and we If keep it is present, past is very good and present is not good, then we go to past and tell everybody,
I was living like that. I had that. I did that, and now I am a housewife. I'm not able to do this. That creep quotient is moving us to go to the past and just in Hindi I can say अपने दुख को सहलाना बहुत अच्छा लगता है. सही बात है, दुख को सहलाना बहुत अच्छा लगता है. वही जो एट द एंड ऑफ द डे यू लव टू हियर बेचारा और बेचारे, एंड द एंड Yes, ऑफ द डे देयर इज सम जॉय इन सफरिंग. एट द yes, एंड ऑफ द डे हमें लगता है सुकून मिलता है, और हम ही उसको इतना पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते. yes. When we meet people, we give example. I have done this. I have done this. Now I am housewife. Hmm. Not Yeah, telling ki yes. So yeah. we are not telling what we are doing right now. We have grown the children. We have given good education, good value to the our kid, and managing our house perfectly. So we are not telling. We are not feeling that we are capable or we are worth of it. We Hmm. think what we did in past. I have done. I have a gold medalist, but I am not working. That means I am not worth of it. Hmm. Situation is changes Hmm. time to time. Yeah. So we are not willing to happy in present. That's why we go to past. If past is very good and present is normal, Hmm. I Right. feel so. Yeah. So And if present is good and past is bad, so we feel कि oh we have triumphed, we win. So still we are going to past to tell मेरा इतना खराब था. Now see I am what we have achieved, what I did struggle. So that achievement, then I go to past. Same of the situation, vice versa. राइट. सो पास्ट अच्छा हो या खराब हो, हमें सिर्फ अपनी पिटाई करनी आती है और हमें सिर्फ अपनी बैंड बजानी आती है. हर ये बात का वो निष्कर्ष होता है कि हमें सिर्फ दुखी बनना आता है, और सुख में भी हम दुखी बनते हैं. अगर अभी प्रेजेंट में दिन अच्छे जा रहे हैं तो भी पास्ट की मेमोरीज को वो याद करते हुए बार बार दुखी बन जाते हैं. सो समवेयर there are certain beliefs which are happening undercurrent. Undercurrent मेरे भीतर कुछ beliefs चल रहे हैं जो मेरी लाइफ को लीड कर रहे हैं, और वो beliefs की वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है. Then what are those beliefs? So basically first of all, beliefs आते कहाँ से हैं, beliefs कहाँ से हम स्टोर करते हैं, और क्यों ये हो रहा है. So number one is, first of all, beliefs are created in the early childhood, right from the womb of the mother till 8 years of our age. हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो 80% डेवलप होता है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सारी चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, फील करके महसूस कर रहा है, और उसके बाद जो भी वहां पे इवेंट सामने हो रहे हैं उसके हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड अपनी मान्यताएं बनाना शुरू करता है और बिलीफ सिस्टम बनाना शुरू करता है. कि जहां पर अगर एक मिनट, जस्ट अ मिनट. सो अगर बचपन में जो हमने देखा है कि अरे यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज है और रिलेशनशिप्स डिफिकल्ट हो रही है, तो एग्जैक्टली यही हमारे अंदर डेफिनेशन बन जाती है कि लाइफ इज स्ट्रगल, रिलेशनशिप्स आर डिफिकल्ट, रिलेशनशिप्स आर हार्ड, और ये हमारे अंदर एक मान्यता बन जाती है. और अगर समझो कि हम अगर बच्चे थे, उस छोटी उम्र के बच्चे थे, और वो छोटी उम्र के बच्चे ने माँ बाप को बार बार झगड़ते हुए देखा, माँ बाप को बार बार आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा, या कई घरों में फिजिकल वायलेंस होता है, मारते हुए देखा, गाली गलौज करते हुए देखा, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हुए देखा, और कई घरों में होता भी है, ये आज तक होता है. तो जब बच्चे ये सारी चीजें सुन रहे हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि रिश्ते जो है ना वो हमेशा खराब ही होते, कड़वे ही होते हैं, जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है, जिंदगी में हमेशा ऐसे कभी कोई सुख मिलता नहीं है, स्पेशली पति पत्नी की रिलेशनशिप तो कड़वी ही रहती है और वो लोग झगड़ते ही रहते हैं. और इस तरह से
अगर उन्होंने पैसों के लिए माँ बाप को झगड़ते हुए देखा तो उनको लगता है कि वो पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी एंड स्ट्रगल इन लाइफ। अगर उन्होंने प्रेम के लिए और राइचियसनेस के लिए दोनों की झगड़ते हुए देखा, जहाँ पे दोनों सिर्फ झगड़ रहे प्रेम का, तू सही मैं सही, तू गलत मैं गलत, और बस उसी के ऊपर वो लोग झगड़े कर रहे हैं, तो एक वो सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीफ बना दिया कि वी कैन ट्रस्ट in relationships, and love is this, love is fighting, that is what the definition the subconscious mind is making. And then उन्होंने सचमुच स्ट्रगल करते हुए देखा अपने पेरेंट्स को, तो वो एक बिलीफ बन जाता है कि लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट सिंपल, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ इज डिफिकल्ट, और ये सारे बिलीफ बन जाती हैं कि कभी जिंदगी में खुशियां मिलती नहीं है, मिलती भी है तो चली जाती हैं। और ये सारे बिलीफ्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड बिकम्स, मतलब ये जो सारे बिलीफ्स जो है वो लैंग्वेज बन गई। तो अभी क्या हुआ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरी उम्र बड़ी हो गई, मेरी जो भी अभी उम्र है, लेकिन जो 0 to 8 years में 80% सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीफ बनाए, 8 to 18 years में और 20% सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ बना रहा है, और 100% हमारी ब्लूप्रिंट रेडी हो गई है कि अभी लाइफ को चलाओ बच्चा, तुम्हें जैसे चलाना है लाइफ को चलाओ। होता क्या है, ये जो सारे इमोशनल जो पेन जो एक बच्चे के तौर पे हमने अनुभव किया, और वही सारे इमोशनल पेन अभी सबकॉन्शियस माइंड को एक ही काम है, वी हैव टू recreate and recreate same emotional pain. तो आप कहीं पे भी हो, कोई भी उम्र पे हो, कोई भी पोजीशन में हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितनी भी डिग्री वाले हो, the subconscious mind has to just recreate the same emotional pain what that mind has observed, and the subconscious mind ने डेटा पकड़ लिया। So बाद में अभी जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में इवन आपके पास खुशी है, इवन आपके पास पैसा आ गया है, इवन आपके पास अच्छे रिलेशनशिप है, उसके बावजूद subconscious mind starts creating the old story, because subconscious mind has to what is the job of subconscious mind? It's a Xerox machine. What is there in the subconscious mind data? There are many emotional wounds which are there, and subconscious mind has to Xerox it. अभी आप लोग वो भी कहोगे, जैसे मैंने ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा कि क्या कभी किसी की जिंदगी में हैप्पी मोमेंट्स आए नहीं क्या, जॉयफुल मोमेंट्स आए नहीं क्या, कभी कोई बच्चा खुश नहीं हुआ क्या? होता है, बच्चे खुश भी होते हैं, जॉयफुल मोमेंट्स भी आती हैं, लेकिन आप वो सोचो कि अगर अभी के अभी आप लोग सबको एक एक्सरसाइज दूं, और उस एक्सरसाइज में मैं आपको बोलूं कि प्लीज राइट डाउन 10 points where in your past you felt very, very bad and you were hurt. Write down 10 points. And at the same time, you write down 10 points where in your past you were very happy and you felt awarded, when you felt very, you were joyful and you celebrated your life. And write down 10 points for that. What do you think that which are the points you can write faster? sad point, sad one. Sad ones, right? जहां पे हम इमोशनल हर्ट्स हुए हैं, वो अभी तक उन्होंने हमारे दिल में, हमारे मन में वो सारी जगह पकड़ के रखी हुई है, क्योंकि वो इमोशन अभी भी जिंदा है, अभी भी वो वुंड्स जिंदा है वो बच्चे के अंदर, तो इसीलिए वो पकड़ के बैठा है बच्चा। बट एट द सेम टाइम खुशियां वाली चीजें तो हम बात कभी याद ही नहीं करते कि हो गया, अच्छी है बात, कभी कभार याद कर लिया, लेकिन दुख वाली कहानियां हमें बहुत सारी याद है। और वो जो है ना, द प्रॉब्लम इज दैट खुश वाली कहानी को हमें हील करने की जरूरत नहीं है, दे आर गुड हैप्पी मेमोरीज। बट जहां पर इमोशनल वुंड्स हुए हैं हमें, जहां पर हमें गुस्सा हुआ था, या हम बहुत डर चुके थे, या हमें बहुत सारी एंजाइटी होने लगी थी, या हम बहुत सारा नफरत अंदर दिल में पैदा होने लगी थी, या हम पूरे अंदर से शेकन हो चुके थे, वी फेल्ट अलोन कि देयर इज नो वन टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी जो इमोशंस जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी भी जिंदा है, और वो बच्चा जिसने ये सारे इमोशंस अनुभव की थी, वो बच्चा भी जिंदा है। सो विद द रिजल्ट
because that is alive and that is not healed in the past. Those wounds are still alive, with the result the subconscious mind is keep creating. आप लुइस हे की हीलियो लाइफ बुक अगर देखोगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि the only role of subconscious mind is to recreate the same emotional experiences what this child has gone through with in early childhood. So उसका मतलब है कि लोग बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू बी द सेम. जहां पर शायद आपके साथ चीटिंग हुई, जहां पर आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, जहां पर यू फेल्ट अनॉयड एंड डिसअपॉइंटेड, जहां पर you felt left alone and there is no one to understand you, in fact your parents also did not support you maybe, and जहां पर कई बार आपको बताया गया कि it is your fault. तो ये सारी बातें जो हमारे अंदर जिंदा है, वो सारी बातों का रिपीट मोड पे हमें अनुभव आना ही है. कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ते से ये सारी चीजें का अनुभव हमें आता है, and with the result we experience sadness even now. We experience even now, even हमारे अच्छे दिन compare to earlier दिन हमें आते हुए भी still we attract those energies. You know what? We are all like magnet. मैग्नेट क्या करता है? आप मैग्नेट को, अगर मेरे हाथ में मैग्नेट है और मैं मैग्नेट के पास अगर मैं बुक किताब लेके जा रही हूँ, क्या मैग्नेट किताब के साथ चिपकेगा? नहीं चिपकेगा. अगर मैं मैग्नेट के साथ मेरा रुमाल लेके जा रही हूँ, क्या मैग्नेट चिपकेगा? नहीं चिपकेगा. अगर मैं मैग्नेट के साथ मेरा कांच का ग्लास लेके जा रही हूँ, क्या वो कांच का ग्लास चिपकेगा? नहीं चिपकेगा. पेपर लेके जा रही हूँ, नहीं चिपकेगा. प्लास्टिक लेके जा रही हूँ, नहीं चिपकेगा. क्यों? Because magnet doesn't have that properties, isn't it? What are the properties of magnet? It has अंदर लोखंड है, कॉपर है और दूसरे अलग अलग टाइप के धातु है, लोहा है. सो अलग अलग टाइप के धातु है जो मैग्नेट के अंदर है. और अभी मैं समझो कि मेरा फोन लेके गई तो फटाक से मेरा फोन उसके साथ चिपकने वाला है. लोहा की कोई भी चीज लेके गई तो फटाक से वो चिपकने वाला है. वो इधर इतना दूर भी होगा तो वो अपने आप खींच के उसके पास लेके जाएगा और चिपक जाएगा. राइट? सो इवन मैंने हाथ में रिंग पहनी है और अगर यहाँ पर मैग्नेट होता तो मेरा हाथ को पुल मिलता और मेरा हाथ उसकी तरफ खींचा चला जाता. सो व्हाट डज इट मीन कि मेरे अंदर जो प्रॉपर्टीज है, मैं बाहर वही प्रॉपर्टीज को, वही सेम प्रॉपर्टीज को बाहर से मेरी तरफ खींच रही हूँ. राइट? सेम वे when I have all these properties of disappointment, hurt feelings, left alone, disrespected, जहाँ पर मेरी हंसी उड़ाई गई थी, and when all these feelings, जहाँ पर I felt very shrunk, when I felt very sad, when I felt very angry and annoyed but there is no one to support me, when I felt unsupported, unloved, वो सारी emotions मेरे भीतर अभी पड़ी हैं. So that is my property, my energy field. Now I will say that, use the term my energy field. If my energy field is filled with all these emotions now, and these emotions are not healed, and वो तरो ताजा है, तो मेरे अंदर की ये सारी energies हैं, वो क्या खींचेगी मेरी तरफ? बाहर से. Now think about magnet. मैग्नेट क्या खींचता है? जो लोहा मैग्नेट में है बाहर से भी लोहे को खींचता है. कॉपर मैग्नेट में है, बाहर से भी कॉपर को खींचता है. And same way in my energy field, if all these memories have stored all these emotions, I am going to attract these situations through different people. देखो लोग बदल जाएंगे आपकी लाइफ में. पहले ए रहेगा तो दूसरी बार बी रहेगा तो तीसरी बार सी रहेगा. और चौथी बार डी रहेगा. एबीसीडी आती रहेगी. लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो आप करोगे वो क्या होगा? which resonates with your energy. और जब तक मैंने मेरे एनर्जी फील्ड को हील नहीं किया है,
I am going to attract the similar kind of emotional experiences. Now what? This is where we have to wake up. Then this is where we have to check inside us that do I now choose to carry the same emotional wounds and same emotions which is keeping me stuck in the past? Do I want to continue with the same belief system which is keeping me stuck in the past? Or do I choose to change? जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने चेंज पे गाना गाया था और मैंने कहा था कि I'm going to push your buttons, I'm going to get you triggered. And it is, the demand is I need to change and I need to take responsibility of my emotional health. और इसीलिए मेरे हर एक प्रोग्राम में मैं एक चीज रिपीट करवाती हूँ और वो है my emotional health is my responsibility. Repeat after me. My emotional health is my responsibility. My emotional health is my responsibility. My emotional health is my responsibility. My emotional health is my topmost priority. My emotional health is my topmost priority. My emotional health is my topmost priority. क्योंकि यही चीज को हम सबसे लास्ट धकेल देते हैं. हम फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, योगा, जिम, यहाँ वहां भागो. हम फूड पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत सारा खाने पे पूरा 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 ध्यान देंगे कि ऐसा खाना वैसा खाना, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है. लेकिन हमारी लिस्ट में जो इमोशनल हेल्थ है वो सबसे लास्ट कैटेगरी में आएगा, जहां पर हम उसका ध्यान ही नहीं देंगे. वहां पर क्या बोलेंगे पता है मेरे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे है, मेरा बैड लक है, यू नो. अब पिछले जन्म के कर्म है वो तो मुझे भुगतना ही है ना, तो वो मुझे भुगतना है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा ना. ठीक है, भुगत लेंगे. And there we keep our back door open. क्योंकि we don't want to take responsibility of emotional health because this is a heavy toll. बहुत बड़ा टास्क है ये. क्यों? इसीलिए किसी ने कहा था ना शुरुआत में ही, कोई बोला, रश्मि बोली आई थिंक, कि हमको पूरी दुनिया को बदलना है लेकिन हमको खुद को नहीं बदलना है. हमको चाहिए कि सब कुछ, मेरी बीवी बच्चे सब मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो कहूँ वही करे. तो वहां पे मुझे कंट्रोल चाहिए, लेकिन जहां पे मुझे मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने हैं इमोशनल हेल्थ की, वहां पे मैं पीछे हट करूंगा. प्रॉब्लम तो मेरे में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो मेरी बीवी में है, मेरे बॉस में है, मेरे बच्चे में है, इधर है उधर है, प्रॉब्लम सब बाहर है, प्रॉब्लम मेरे भीतर है ही नहीं. So with this result, what are we going to do? We are going to keep in the same circle. No problem. Continue. Same circle. सेम पास्ट. होता क्या है बताएं? समझो कि आज कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जहां पर आपको आपका बटन पुश किया गया. योर बटन इज पुश्ड. नाउ यू गॉट ट्रिगर्ड एंड देन देयर आर इमोशंस व्हिच कम्स अप. और पता है, हम सबसे पहले जैसे मंजीत ने बराबर एकदम सही से प्रोग्राम की शुरुआत की थी, वो ओपनिंग बैट्समैन था आज के सेशन का, और उसने कहा, मंजीत ने कहा कि बिकॉज हम सबसे पहले पास्ट में भटक जाते हैं. एंड दैट इज सो वेरी मच ट्रू. हम इमीडिएटली पास्ट में जाते हैं और वो बंदे को याद करते हैं कि ये बंदे ने पास्ट में भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, और वो दूसरी बंदे ने भी मेरे साथ चीटिंग की थी और इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, तो मेरी जिंदगी में तो यही बार बार हो रहा है. एंड इमीडिएटली वी गो एंड वी ब्लेम all the past people and we tell them that they are responsible. और आज भी देखो मेरे साथ यही हो रहा है. So what are we doing? Is it taking responsibility of your emotional health or is it running away from your responsibility? क्या इसी को आप कर्मा कहोगे? क्या कर्मा वो है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना कर्मा है? What is कर्मा? हम कर्मा के नाम पे बहुत बैंड बजाते हैं. What is कर्मा? कर्मा, हर एक विचार हमारा कर्मा है, हर एक इमोशन हमारी कर्मा है. इस पल में, इस समय में मेरे अंदर क्या विचार आ रहा है और कौन सी इमोशंस मैं यूनिवर्स में भेज रहा हूं. बिकॉज एज आई कीप टेलिंग यू दैट इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन.
इस पल में मैं कौन सी इमोशंस का सीड इस धरती में बोझ रही हूँ. Because you know your every emotion counts and it is gathering in the consciousness of the universe. क्यों आज लोग वो बोलते हैं कि पहले के जमाने में स्वर्ग हुआ करते थे और क्या बोलते, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो बोला करते थे, और अभी के जमाने में देखो अभी नर्क आ गया है, समथिंग समथिंग द पीपल से, आई डोंट नो वेरी मच क्लियरली. एंड क्यों वो लग रहा है? बिकॉज दोज वाइब्रेशंस वी आर emitting those vibrations more, emitting the vibrations of jealousy, emitting the vibrations of sadness or anger or lack, not enough, not enough, not enough, and all of it. So we are continuously in the rat race. We are not taking responsibility of our emotional health, एंड हमें सिर्फ दूसरों को पंचिंग बैग बनाना है और दूसरे के ऊपर मारो, जो मारना है मारो, दूसरों के ऊपर पंचिंग बैग बना के we are not ready to take the responsibility of our emotions, that what are the emotions I am radiating in this moment to Mother Earth. Because आपकी हर एक इमोशंस, आपके हर एक विचार के साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ी हुई है. either the thought is attached neutrally, which doesn't have emotions, or either it has happy emotions, or either it has you are going to take it negatively and you will feel sad. Thought तो ऐसे neutral ही रहता है, but you take it either positively and you will feel happy, or you take it negatively and you will feel sad. So every thought के साथ अब जो भी emotions generate कर रहे हो, that is your karma. Now if you are with every thought, जैसे हम लोगों का 4 दिन का मैनिफेस्ट मनी का चैलेंज था और मैं बार बार हर रोज बोल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स करेंगे. So when we are blessing with to someone, we are adding our cosmic bank account. At the same time we are contributing to the consciousness of Mother Earth. But at the same time, if I am going exactly opposite, I am in a complaining mode, I am either in the righteous mode. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है righteousness का, कि मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, I am right, I am right, I am right, I am right, and the other person is wrong, other person is wrong. So all the time when we are in that righteousness mood, what kind of vibrations we are sending it to the universe? And then in that, we are definitely, you are not happy when you say that the other person is wrong and I am right. Because your consciousness is making that person, consciousness is exactly after making that person small, making that person wrong, and your focus is only on the wrongness of the person. What does that mean? What that person is doing good in your life, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उस पे. What are the positive things which are happening through that person, उस पे हमारा ध्यान ही नहीं है. जहां पे चीजें गलत हो रही है, हमारा वहीं पे फोकस है और हम वही बार बार उसको टारगेट बना के we will keep telling that that person is wrong, that person is wrong, that person is wrong. So what are the kind of vibrations are you putting to the universe? Isn't that a karma? Your every thought and your every emotion is karma. And if you are telling that मुझे भुगतना ही है क्योंकि मेरे पिछले जन्म का कुछ तो कर्मा है जिसकी वजह से मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ, अच्छी बात है, बट अभी आगे के लिए क्या कर रहे हो आप? आगे की जिंदगी के लिए क्या कर रहे हो? पास तो हमारे हाथ में नहीं है, निकल चुका, जो हमने किया सो किया. आगे के लिए आप क्या कर रहे हो? आगे के लिए भी आप अपने लिए कब्र खोद रहे हो. What are you doing? What vibrations are you sending? And what karma are you now creating for you? Are you awake? Are you alert? Are you aware? So that is why it is very, 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 very important to take charge of our emotional health and start working on those wounds, because वहां पे roots है. और वो रूट्स हील नहीं हुए हैं, वो रूट्स पे काम करना शुरू करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जेरोक्स वहां से कर रहा है. और वहां पे जब जेरोक्स मशीन में से जो हमने ओरिजिनल कॉपी निकाल के अभी दूसरा प्रोग्रामिंग डाला, बिलीफ सिस्टम चेंज की, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमने चेंज किए, हमारा परसेप्शन चेंज किया. किसी ने कहा था
I think Magical Suman ने कहा था कि we are not changing our perception, we are not changing our glasses. Very very true, Suman. So हमारा perception अगर वहां पे change करेंगे हम, जो हमारी old memories में था, then there are high chances that now I will experience new reality and I can create a new reality. So your emotional health is your responsibility, nobody else's responsibility. All your triggers are your responsibility and not the other person's responsibility. Another person is never wrong. Other person is never wrong. It is me who is in the war, in the struggle of right and wrong. It is me who wants to be righteous, righteous, righteous all the time. Because of my ego mind, I want to just prove myself that मैं कितनी भली भाली भोली सही इंसान और बाकी सारी दुनिया गलत. So it is high time, if we are going to keep running in the same emotional path, जिंदगी का कभी समय आ जाएगा और घंटी अपनी बज जाएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा, पता नहीं है. और इसी तरह से एंड तक हम यही करते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे. But now, can we change our approach? Of course, for that we need to do loads and loads of forgiveness. There's loads and loads of forgiveness we have to do. And the most important part is we have to do self-forgiveness. We have to forgive them also and we have to forgive ourselves also. अभी आप बोलोगे कि वो लोग सारे गलत, उनको क्यों forgive करना है हमें? क्यों करना चाहिए हमें forgiveness? क्यों होनी चाहिए forgiveness? और हम क्यों करें जब उनके साथ उन्होंने हमारे साथ गलत किया? और वही क्वेश्चन लुइस हे ने पूछा था जब उनको वजाइनल कैंसर से डिटेक्ट किया गया था, डायग्नोज किया गया था. And then she said that I have created this cancer in my body and I am responsible for this cancer. क्या कोई बोलता है कि मैंने मेरी बॉडी में क्रिएट किया है डायबिटीज, मैंने मेरी बॉडी में क्रिएट किया है हार्ट अटैक, मैंने मेरी बॉडी में क्रिएट किया है कैंसर? बट these are her words in her book. Life Loves Me एक बुक है उनकी, पढ़िएगा उसमें, जहाँ पे रॉबर्ट होल्डन के साथ उनका पूरा इंटरव्यू हुआ है. पढ़िएगा वो बुक में, और उसमें लिखा हुआ है कि I have created this cancer in my body. So what does that mean? That means that क्योंकि उनकी पास्ट बहुत ही खराब हो रही थी, जहाँ पे बार बार उनको फील करवाया गया था कि शी इज नॉट गुड इनफ, शी इज नॉट लवेबल इनफ, शी इज नॉट केपेबल इनफ, तो उनके वो चाइल्डहुड में जो इम्प्रिंट्स हुई थी और जहाँ पे उनके जो स्टेप फादर ने उनको और उनकी मदर के ऊपर बहुत सारा अब्यूज किया था, वर्बल अब्यूज था, फिजिकल अब्यूज था, सेक्सुअल अब्यूज था लुइस पे, तो वो अपने फादर को कैसे माफ करेगी जब फादर के थ्रू पास से ही उसको सेक्सुअल अब्यूज मिला और प्लस बाद में उसके बाद बहुत सारे लोगों से भी मिला. तो शी हैड टन्स एंड टन्स ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स फादर and then mother. But she had to forgive. When we are doing forgiveness, we are not supporting the act. We are not supporting the act that this is right he has done. But that action and those emotions which was alive in her for so many years, and when she was nearing 50, she was diagnosed with cancer. So when those emotional wounds were alive, hatred for male, what is the reason for cancer? It's the continuous hatred which turns into resentment, and that resentment eats away all your healthy cells. Gautam Buddha ने कहा था, what is resentment? It is like every day you are drinking poison day by day and you are thinking that other person will die. Will it be possible? So when we have long stored resentment and नफरत किसी के लिए है जो उसको अपने फादर की मदर के लिए थी, and then all those men who misbehaved with her, and in fact she was pregnant also at the age of 16 because of all this.
सो जो उनके अंदर गुस्सा था, जो इमोशंस को उन्होंने प्रोसेस नहीं की थी, और वो इमोशंस जो हम बॉडी में बाद में स्टोर करते हैं, एंड देन द कैंसर ईट्स अवे ऑल द हेल्दी सेल्स, and then it turns into poison because cancerous cells बन जाते हैं हमारे शरीर में, healthy cells मर जाते हैं तो, and that's how she created cancer. And when she created cancer, she said that I am taking responsibility of this cancer because I know it is because of my emotional wounds which I have not worked upon, which I have not healed, and that has created this cancer. So I am taking responsibility of my emotional wounds, and I have to forgive my father and mother. And that is what she did. She did a lot of exercises. She did a lot of therapies. She practiced self-love, self-approval, self-acceptance, forgiveness, and gratitude. These were the 5 pillars on which she worked through inner child healing and through mirror work, affirmations, and through many therapies where she released her anger, her hatred. So when people come to us for the workshops, where in that live workshops we do many methods, we use many methods, and we do many therapies and exercises where we encourage everyone to release that poison, whatever you have stored for all these years. And then when you start releasing it, क्योंकि बहुत सारा गुस्सा और नफरत आपके अंदर है, तो आप फॉरगिव कर ही नहीं पाओगे. क्या आप में से किसी को पता नहीं था आज तक? क्या पहली बार सुना कि फॉरगिवनेस करना चाहिए? क्या आपने पहली बार सुना कि आपने लेट गो करना चाहिए? क्या आपने पहली बार सुना फॉरगिव एंड फॉरगेट? सबको पता है बचपन से, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने वो वुंड्स को हील नहीं किया है, और वहां पे जो एनम पड़ा है, पॉइजन पड़ा है, वो पॉइजन को हमने वॉमिट नहीं किया है, हमारे सिस्टम से बाहर नहीं फेंका है. सो द सीड्स आर देयर अलाइव and it is multiplying, and that's why we are experiencing what we are experiencing right now. So if we are stuck in the past, it is really burning us, and it is burning our present moment, it is burning our future, and our future is at a toss. So that is where complete forgiveness helps. And from the space of love, because I love my life, and now I choose to forgive them also and forgive myself also. And that's where we practice forgiveness and then gratitude. And that is very, very, very important part of our life. नहीं तो हम और अपने अगले जन्म के लिए भी सारी अपनी कॉस्मिक बैंक अकाउंट भर रहे हैं. किससे भरना है वो आपके ऊपर, चॉइस आपकी है कि आपको किससे भरना है, कौन से सीड्स से भरना है. पॉइजनस कैंसरस सेल्स से आपको अगली जन्म के सीड्स इकट्ठे करने हैं, या आपको अच्छे वाले, ब्लेसिंग्स वाले, प्यार वाले, एक्सेप्टेंस वाले सीड्स से आपको अपने अगले जन्म का कॉस्मिक बैंक अकाउंट भरना है. एंड दैट इज व्हाट योर रियल कर्मा इज. एंड इन दैट रियल कर्मा there is only glad acceptance. And then with acceptance you can, कोई भी बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए ना, आप सह सकते हो. बताए जो ये पृथ्वी के जो है ना, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कौन है? सबसे सक्सेसफुल लोग वो है जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस में है. कितने भी तूफान आ जाए ना, देखो कितने भी तूफान आ जाए ना, जो पेड़ एकदम स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा ना, वो टूट जाएगा. लेकिन जो विलो ट्री जैसे है, जो ऐसे तूफानों में भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन वो टिक जाता है. और जो ट्री एकदम खड़ा का खड़ा कि मैं ही राइट और मैं ही राइट, कितना भी तूफान आने दो, मैं ही राइट, वो ट्री टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, रूट से उखड़ के फेंक के हो जाएगा वो ट्री का, वो हाल होगा. तो सबसे सक्सेसफुल दुनिया के लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो सबसे ज्यादा एकोमोडेटिव है, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस में है,
वो सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस ओरिएंटेड है कि ठीक है ये नहीं है तो दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। वो सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव बदलने के लिए तैयार है कि ये चश्मा से मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो दूसरा चश्मा पहन लो और अपना परसेप्शन चेंज कर लो। वो सबसे ज्यादा रेडी टू चेंज है। And those people are the most successful people of the world and they are the world leaders. But जितने लोग आप जितने stubborn बनते हो, जितने आप righteousness में अड़े रहते हो और अपने emotional wounds की और अपने emotional health की अगर आप responsibility ना लेते हुए अभी तक आप blame game में रुके हो और righteousness में ही आपको मजा आ रही है, then all the best to you. Life is waiting for you. The rest of the life is waiting for you. So, with that, let us have a small meditation and we will end our session with small meditation. मुझे पता है कई लोगों के बटन्स ट्रिगर हुए होंगे, कई लोगों को लगता होगा कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, ये अत्याचार हुआ है, श्रेया ये क्या बात कर रही हो, हम कैसे इसको एक्सेप्ट करें, कैसे किसी को माफ करें। बहुत सारे बटन्स आपके ट्रिगर हुए होंगे, but I am very happy if I have triggered your buttons, because जहां से आप एटलीस्ट उठोगे और सोचना शुरू करोगे। So let us begin with a small meditation, and with this meditation we will end our session. Let us take a deep breath. And let us assimilate all that what we have heard. Thank you, my divine. Thank you for gifting all of us this wisdom, pearls of wisdom. Thank you for awakening our consciousness. Thank you, my divine. You are so kind, you are so compassionate, you are so loving. हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसीह, हम सब बच्चे आपकी शरण में आए हैं। हम सब बच्चों का हाथ थाम लो। हम दुनिया की राह में भटक गए हैं। मैं और मेरा में भटक गए हैं। बस मेरा 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 करते रह रहे हैं। मेरा अभिप्राय, मेरी इज्जत, मेरी शान, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरा घर, और ये मेरा 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 करते हुए
हम इतना भटक गए हैं कि सच्ची मानवता भूल चुके हैं। अपने अंतर आत्मा को सुनना ही भूल चुके हैं हम। अपने अंदर की आवाज को कभी सुन ही नहीं रहे हैं। अपने अंदर की आवाज हमें पुकार रही है कि माफ कर और आगे बढ़। अपने अंदर की आवाज हमें पुकार रही है कि सबको आशीर्वाद दे और आगे बढ़। जो जहां पर भी था, जो भी कॉन्शियसनेस में था, उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से, अपने अंदर की भीतर की चेतना के हिसाब से वो काम किए। उसे माफ कर, उसे जाने दे, उसे आगे बढ़। तू अपनी संभाल, कितनी बची है जिंदगी। तू अपनी संभाल। मेरा मेरा करते हुए जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरा स्वाभिमान। पानी की तरह स्वच्छ और निर्मल बन जा। जिस तरह से पानी बहता रहता है, कितनी भी चट्टानें आता है, पानी रुकता नहीं है। रुकना उसका धर्म नहीं है। कितनी भी चट्टान होने दो, उसमें से भी वो अपना रास्ता निकाल देता है और बस बहता रहता है। पानी का धर्म है सबको जीवन देना, सबकी प्यास बुझाना, सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो। पानी बस अपना धर्म निभाए जा रहा है। और इसी तरह से हम भी हमारा कर्तव्य निभाए जा रहे हैं। इन ग्लैड एक्सेप्टेंस, सबको माफ करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, अपने खुद के प्यार से, स्वयं से प्यार करते हुए, खुद की जिंदगी से प्यार करते हुए, खुद के अंदर बसे हुए उस अंतरात्मा से जुड़ते हुए बस ये जिंदगी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पानी कभी कोई शिकायत नहीं करता। और अगर पानी बहना बंद हो जाता है तो पानी अपनी निर्मलता खो बैठता है। पानी में से बास आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से let us keep growing our consciousness. Let us shift. कब तक जिंदगी में नफरत की आग में जीते रहेंगे? कब तक आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे? कब तक? Let us wake up. It's time to awaken. It's time to raise our consciousness. Mother Earth is waiting for all of us. Mother Earth is waiting for all of us. पानी में, शुद्ध पानी में जैसे आप अपने आप को भी देख सकते हो,
उसी तरह से हमारा मन इतना स्वच्छ निर्मल कर दे और प्यार से भर दे और पूरी दुनिया हमारा मिरर बन जाए। जितना प्यार हमारे दिल में है, हमारे भीतर है, वही प्यार हमें भर भर के दुनिया से मिले। And now imagine yourself that you are walking in a deep forest. चारों बाजू घने जंगल, हरे भरे पेड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, मिट्टी की खुशबू, हरियाली वाली घास लहर रही है, तितलियां इधर उधर घूम रही है, रंग बिरंगी फूल आप देख रहे हो। खुले पैर जब आप चल रहे हो तो मिट्टी का अनुभव कर रहे हो। And now choose one tree and you walk towards that tree. And now hug this tree. And this tree आपके विश्व पिता है, ये परम पिता परमेश्वर है ये। And hug the tree. आपका सर उस पेड़ के साथ गले लग गए हो आप। And now talk to this tree. What is it that you would like to talk to this tree? What is it that you want to offer to this tree? इस पेड़ से, इस धरती माँ से हम विनती करेंगे कि मैं अपने आप से तो खुद से मेरे अंदर के द्वेष भाव, मेरे अंदर की नफरत को, मेरे अंदर के गुस्से को, मेरे अंदर की जेलसी को मिटा नहीं पा रही हूं। मुझे मदद चाहिए। I'm willing to change. I'm willing to drop all my anger, animosity, hatred, resentment, jealousy, lack feelings. I'm ready to drop everything. लेकिन मैं अपने आप से कर नहीं पा रही हूं। मुझे उतनी श्रद्धा दो, मुझे उतनी स्ट्रेंथ दो, शक्ति दो, मुझे उतनी भक्ति दो, मुझे उतना सामर्थ्य दो। मुझे रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे इतनी शक्ति दो कि आसानी से ये सारे जहर में से मैं बाहर निकल जाऊं और एक स्वच्छ मन से, निर्मल और पवित्र मन से एक नई जिंदगी की कहानी लिखो और एक नई जिंदगी शुरू करो। हे प्रभु, बहुत सारी कमियां भरी पड़ी है। मुझसे अकेले से तो ये शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा हाथ थाम लो, मेरा हाथ थाम लो और मेरा मन स्वच्छ कर लो। मेरा हाथ थाम लो। And now, slowly and steadily, you are walking to the water stream which is just nearby.
और पानी के इस झरने में आप पैर लग के बैठ गए हो। एंड इमेजिन आपके दिल की नफरत, आपके दिल का गुस्सा इस पानी में बह रहा है। And you are allowing yourself and giving permission to yourself to dissolve all the anger, all the animosity, all the hatred. और अच्छी शुद्ध हवा की सांस लेते हुए you are repeating in your mind that I am willing to let go. I choose to let go. Because I love my life, I choose to let go. Because I love my life, I drop and dissolve my righteousness. Because I love my life and I value this life, I drop my ego mind. Because I value my life and I love my life, now I am taking responsibility of my emotional health. I am releasing the need for blame. I release the need of blame game. I release the need to feel guilty. I release the need to be angry. I release the need of hatred. I release the need of pain. I release the need for regrets. I release the need for manipulation. I release the need for criticism. I release the need for blame game. जब needs ही नहीं रहेगी तो supply कहाँ से आएगा? I drop and dissolve and I release it. I release it. I release it. And allow it to flow into the water. And this water is cleansing you and your energies. This water is cleansing you and your energies. And now take a deep breath of fresh air and repeat after me. I am in the constant state of appreciation. I am in the constant state of appreciation. I am in the constant state of gratitude. I am in the constant state of gratitude. I am in the constant state of gratitude. I am in the constant state of blessings. I am in the constant state of blessings. I am in the constant state of blessings. I am in the constant state of trust. I am in the constant state of trust. I am in the constant state of surrender. I am in the constant state of surrender. मैं इस जीवन की बागडोर मेरे भीतर बसे हुए उस आत्मा के हाथ दे रही हूँ। मेरे भीतर बसे हुए मेरे प्रभु, मेरे वाहे गुरु के हाथ में दे रही हूँ। मैं इस जीवन की बागडोर मैं उनके हाथों में दे रही हूँ। I am taking a back seat and let the divine take the driver's seat and let the divine lead my life wherever he wants me to go. Whatever plans he makes for me, I am ready to surrender. I am ready to surrender. I am ready to let go my will, my expectations, my desires. I am ready to let go.
I am taking a back seat and I allow the divine to lead my life. Lead me, lead me, lead me to thee, lead me to thee, lead me to you, lead me to you, lead me to you, lead me to you. Lead me to you, lead me to you. Feeling thy presence, feeling thy grace, feeling thy radiance. You are my source of faith and strength. You are my path and destination, and I'm always connected to you. Nothing of me and everything of you. Lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. Feeling thy presence, feeling thy grace, feeling thy radiance. You are my source of faith and strength. You are my path and destination, and I'm always connected to you. Nothing of me and everything of you. Lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. Lead me to you, lead me to you, lead me to you. दिल से बस प्रार्थना करते हुए उससे प्रार्थना करेंगे, हमें रास्ता दिखाओ, हमारा हाथ थाम लो, हमें बस अभी हमारे मन की, हमारे आत्मा के शुद्धिकरण के रास्ते पे चलना है। बस हमें रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि आए सबके जीवन में, बदलाव आए सबके जीवन में, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। वही प्रार्थना के साथ let us end this session and let us open our eyes. Thank you, thank you, thank you, and I love you. Thank you, Shreya. Beautiful session. Thank you. Thank Love you. you so much. थैंक यू श्रेया जी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. ये संडे Thank को you, Shreya. there is a workshop in Mumbai at my studio. Whoever are on in Mumbai, they can come physically. Whoever are not in Mumbai, they can attend online session. But we are going to work on the same concept that
searching for the lost self, and यहाँ पर हम forgiveness की ही बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि जो past के हमारे emotional bondages जो हमने इकट्ठे करके रखे हैं, now how can we work on it, how can we forgive it, and how can we move forward, and how can we use different techniques to release our venom, release our hatred from our system. So यह Sunday को 1:30 to 7:30 6 hours के एक forgiveness के ऊपर workshop है, where we are going to in search of the lost self. That is the name of the workshop. So because we are disconnected with the self, we are experiencing what we are experiencing. So whoever is interested, please send me message on my personal chat. Thank you so much, and I love you. Thank you. Thank you.